and they would be standing there beating their gongs. And this gong is particularly a type of gong that is different from the other types of gongs which are used in Buddhism or in the celebrations of Jainism also. So differently designed gongs are there, and they produce, when they are played together in unison, it produces such a magical, mystical sound that everybody gets into that mood and mind to pay their obeisance to Lord. And the Lord is taken into the main canopy of the chariot. The chariot is known as Nandi Ghosha, and slowly, little perched, little higher, 6 feet 6 inches high from the main flooring of the chariot, and there the place is demarcated, and on the demarcated place there is a wooden circle or a seat is kept there, and that is the designated point where the Lord would be made to sit. But not on the wooden circles, but also the padded pillow will be there, so that the body of the torso of the Lord doesn't get any pain or anything. Many people, at many times it is also seen, lot of servitors, they come with a piece of cloth, silken cloths, not of cloths, to wipe out the faces, because it is understood that the body of the Lord must be also experiencing the humidity that is there in this part of the country. So to wipe out the bits of sweat, the servitors also provide that. And this is how it is being done. The celebration is going on, and this is the way the gong beaters, they would be standing on the floor of the chariot, sounding their gongs, as that produces the inspiration, motivation for the devotees, or those people, those who are there to drag the chariot. The four ropes, they have also got names. Nothing is ignoble, everything is noble. Even a streak of grass is also not ignoble. Everything has a character, everything has a place in the devotion. Without that, nothing can be possible, because everything has been coded and decoded in the practice and worship of Lord Jagannatha, and it is there, an intrinsic part of the Jagannatha consciousness. This is how the maneuvering is done, and the silken ropes that is used by the devotees, by the servitors. Now this is how the people are trying out their luck to have a piece of holy vessel, and this is how Lord is being moved inside the inner precincts or into the main canopy, or we can say that to be the sanctum of the chariot. The Lord has just stepped onto the floor of the chariot, and the chariot has been decorated beautifully, and for the last many years we have been witnessing the more of floral decoration is being done. And the same way, the chariot, when that would be returning to the main temple, this is the outward journey, and when the inward journey, the chariots are kept ready, the same type of floral decorations would be there. That is done courtesy of the temple administration. It doesn't require any servitor or any designated person from any mutt or monasteries to do that. This is done courtesy temple administration, because temple administration is responsible to oversee that everything goes smoothly, beautifully, and suitable to the magnificence of the Lords. This is how it happens, and Lord would be there, and it is a beautiful sight to be seen when the torso of the Lord would be just given a twist, so that the Lord would face towards south. Now the Lord is facing inside, and the Lord would be facing to the front of the chariot, and that movement is a particular moment when the devotees they get ecstatic at the view of meeting with the large eyes of Lord Jagannatha. This is how the Lord is being taken, because this part is little difficult, because this place is small, the width is less, and Lord has to get inside.
And this is how it is being done. And after that, when the lords are first there, now tithering will be there, the rundha that will be done, and after that the other rituals would be covered. And the other highlighted ritual would be the Chera Pahara, or the holy sweeping ritual that would be conducted by none other than the Gajapati Maharaja himself. And in the absence of Gajapati Maharaja himself, there is the other designated person. He is also a young boy. He is put into the service, and this is how the Lord is getting into the chariot. It is a beautiful moment. It's a moment to be experienced. It is a moment to be not just seen. It is a moment to be felt. That is how there is a crowd, and the senior servitors of the Daitapati order, they are all around the Lord, so that nothing untoward happens and everything gets smoothly and comfortably. This is how it happens. Senior servitors, they are overseeing, and they are also engaging the younger servitors, the younger Daitapatis, to be in the training, because without training, without the motivation, nothing can be possible. And this is the chariot of Lord Jagannatha. सिर परश की पुच्छ कटी कटे पीताम्बर, भरते थे सहचरों को प्रभु नयन से इशारे अक्सर, वृंदावन के रास वो बास थे अतीब प्रिय तुम्हारे, प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ दर्शन दीजिए मेरे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पावनी घोष यात्रा के पुण्य अवसर पर ये पहंडी का अंतिम क्षण आप देख रहे हैं। रथारूढ़ हो रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। ये जिसे भक्त कवि हरिश्चंद्र ने देखा ही जैसे भगवान को, क्या कहा, न शकल की मूलमयी, वेदन की भेदमयी, ग्रंथन की तत्वमयी, वादन के जाल की, मन बुद्धि सीमामयी, सृष्टि की आदिमयी, देवन की पूजामयी, जीवमयी काल की, ध्यानमयी ज्ञानमयी, शोभामयी सुखमयी, गोपी गोप गाय ब्रज भागमयी भाल की, भक्त अनुरागमयी, राधिका सुहागमयी, प्राणमयी प्रेममयी, मूर्त गोपाल की। ये साक्षात गोपाल मूर्ति आ रहे हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी रथारूढ़ हो रहे हैं नंदी घोष पर। ये देख रहे हैं घंटाधारी कितने ताल मिला मिला करके घंट बजाते आते हैं, कमर हिला हिला करके, कमर हिला हिला करके, एक नाद एक लय एक ताल एक भाव में झूमते गाते और महाप्रभु के लिए ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु जिसे मुनिवर जति करहि जई ध्याना, नेति नेति कह वेद पुराना, सो प्रभु दीन बंधु सुख राशि, अखिल अनंत लखा विनाशी, सोई नीलमा धवतनुधारी, नीलाचल गिरि गुहा विहारी, भूरि भाग्य भाजन में भाई, भरी नयन देखी हूँ छवि जाई। प्रभु का ये सुंदर सिमुख देखने के लिए आज अनंत भक्त यहाँ उपस्थित है। विद्यापति को भी ये अवसर मिला था, हमें भी मिल रहा है, करोड़ों लाखों भक्तों को भी ये अवसर मिल रहा है दूरदर्शन के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आ रहे हैं, उन्हें पाट रज्जु से बंधा हुआ है, पाट रज्जु से बंधा अंग शी कस कस के बैठ बैठ आ रहे हैं प्रभु मेदिनी धंस धंस के, विश्वावसुवंशी अवतंसी दैतापति, भाव भक्त कसते जाते हैं जग के पति, आज स्वयं कर रहे हैं पदार्पण जग करता, दर्शन से अवसाद सभी मन का हरता। सभी भक्तों का मन के अवसाद को हरण करते हुए, दमन करते हुए आज रथारूढ़ हो रहे महाप्रभु रथारूढ़ हो रहे हैं। जो अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। आज सगुन मानो हो करके वो भक्तों के प्रेम से लबालब होकर के आ रहे हैं। यहाँ उत्कल प्रसंग रथ यात्रा विशेषांग निश्चित रूप से विमोचित किया जा रहा है, लोकार्पित किया गया भक्तों के लिए, और सभी भक्त इसे पढ़ करके कृतार्थ होंगे। भगवान के गुणगान जो हुआ है उसे पढ़ लिख करके भी धन्य होंगे।
प्रभु वर्तमान विराजित हो रहे हैं, रथारूढ़ हो रहे हैं और इस तरफ भक्तों के लिए ये उत्कल प्रसंग समर्पित किया जा रहा है। आहा प्रभु आप कितने सुंदर हो, इसीलिए तो आ रहे हो ना ये सुंदर मूर्ति देखने के लिए। भगवान के भक्त व्याकुल आकुल हैं, अभी रथारूढ़ हो रहे महाप्रभु। जय जय देव जगत के स्वामी, जल जनयन दुख दलन मामी, भवसागर भूगत यह दासा, राखों केवल तुम्हारी ही आशा, अज अनादि शोभा गुण सागर, जयत जयत जय हे नटनागर, जयत जयत हे नटनागर। देख रहे हैं आप महाप्रभु की धाम से राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री महोदय समर्पित कर रहे हैं उत्कल प्रसंग और उड़ीसा रिव्यू। यहाँ भक्त आनंद भक्त ओहो, इधर देखो महाप्रभु के गुणगान हो रहे हैं, उधर देखो महाप्रभु को दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं भक्तगण। आहा प्रभु आपके लिए ये सभी व्यवस्थाएं हैं, आपको दर्शन करने के लिए ये उत्कंठा है। क्यों? क्योंकि योग जन जिनके दर्शन हित जप करते, रात और दिन जग कर युग युग तप करते, वही अधीश्वर नील शैल के करके कृपा मुरारी, वितरित आज करेंगे सबको निज करुणा का वारी। आज अपनी करुणा वारी पात करने के लिए आ रहे हैं प्रभु। ये तो वारी पात हो रहा है, स्वयं इंद्रदेव भी ये वर्षा कर रहे हैं। फिर देखिए घंटाधारी घंट बजाते हुए, ये घंट क्या देखिए ना, घंट बजाते हैं और नाचते हैं और भाव से भावुक होकर के भगवान को समर्पित करते हैं ये। क्योंकि आज भक्तों के मन में जो भावना है, भक्त है तो वो भगवान के भाव को जानते हुए भगवान के दर्शन करके कृतार्थ होंगे। और जो मूढ़ानां गूढ़ तत्वम, ये मूढ़ों के लिए गूढ़ तत्व, मूढ़ानां गूढ़ तत्वम पतित जन्मताम वर्धकम वर्धिजाया साकारम मारविन्नम शतनग नव संस्थापनम पापपंते। महाप्रभु रथारूढ़ हो रहे हैं, इनके गति में, इनके मति में, सभी इनके कृति में, वृत्ति में केवल जगत मंगल की चिंता है। गतिस्ते मतिस्ते जगन मंगलाय, कृतिस्ते वृत्तिस्ते भवेन सुखाय, क्रमस्ते श्रमस्ते रमा विभ्रमाय, क्लमस्ते श्रमस्ते स्वभक्ते हिताय। भक्तों के लिए आज महाप्रभु रथारूढ़ हो रहे हैं, सिंहासन त्याग करके, क्या करके न सिंहासन त्याग करके यहाँ श्रीमुख का शुभ दर्शन करने के लिए सभी भक्त एकत्रित हैं। भगवान आज यहाँ आ रहे हैं, दुख ही हरण नहीं करेंगे, ये चोरी कर लेंगे, दुख चोरी कर लेंगे महाप्रभु, सभी भक्तों का दुख चोरी कर लेंगे। इसलिए तो सूरदास ने कहा ना, देखी मोहन और श्याम सुभग स रोज आनन, चारु चित्त के चोर। ये मन धन को चोरी करने वाले हैं, चित्त वित्त को चोरी करने वाले हैं। इसीलिए तो कहा गया चतुर चोरमणि, जो चोर श्रेष्ठ हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये ब्रज में नवनीत चोरी करते थे, गोपांगनाओं का दुकुल यानी वस्त्र चोरी करते थे और भक्तों के अनंत जन्म के कष्ट के और क्लेश के पाप के समस्त चोरी कर लेते हैं। इसीलिए चोर श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा गया ये चोर मनोरम श्रेष्ठ चोर है। पटम्बर धर भट्टारक बक कुट्टा कलरित पंडित मंडित वन्यास्थित बहु कन्या पटहर धन्याशय मणि चोर मनोरम वीर। ये रेशमी पटम्बर यानी रेशमी पीताम्बर धारण करने वाले श्रेष्ठ विद्वानों और पूजित सम्मानित गोपिकाओं के हृदय को मोह लेने वाले वीर, आपका आकर्षक स्वर और मनोहर रूप भक्तों के तन मन को, मन रत्न को चुरा लेते हैं। आप सबके चित्त को आनंदित कर देने वाले रमणीय नायक हैं प्रभु। इसीलिए आप आ रहे हैं और भक्तों को ये आनंद प्रदान करने वाले। आज तो मुकुट उनका नहीं है, अंत टाहिया आज नहीं है। भक्तों की अनंत दुख क्लेश को नष्ट करने वाले
स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी जो सुंदर श्याम सुंदर वरलीला सुंदर बोलत वचन रसाल सुंदर चारु कपोल विराजत सुंदर उरुज बनी बनमाल सुंदर चरण सुंदर हे नखमणि सुंदर कुंडल हेम जराल सुंदर मोहन नयन चपल किए सुंदर ग्रीवा बाहु विशाल सुंदर मुरली मधुर बजावत सुंदर हे मोहन गोपाल सूरदास दुर्यति राजति ब्रज को आवत से सुंदर चाल। दोनों भाई आज सुंदर चाल चलते हुए रथारूढ़ हो चुके हैं और भगवान को कहा गया ये पुण्य ब्रह्म है, वह पुण्य ब्रह्म पुरुषोत्तम अभय बर का दाता है, दुख हरता सुखदाता और मोक्ष प्रदाता है। ब्रज में जो यशोदा नंदन कृष्ण बुलाता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है। महाप्रभु अभी भक्तों की ओर पश्चात धाव पीठ करके हुए हैं और दिखाई नहीं दिए, सीमों को दिखाई नहीं दिए हैं। प्रभु आपकी ये लीला अनंत है, अव्यक्त है और अवर्चनीय है। इसीलिए महाप्रभु आपको क्या कहा गया, ना आप साक्षात महावीर है, साक्षात बुद्ध है। प्रणिपत्य जगन्नाथ सर्वजीन वरार्चितम सर्वबुद्धमयम सिद्धि व्यापिनम गगन उपमम। और आप क्या है, न सर्वरूप समास्थाय सर्वरूप परायणे मोह्यन सर्वभूतानि तस्मै बुद्धात्मने नमः। आप बुद्ध भी है, आप जैन भी है, यानी महावीर भी हैं। और क्या है ना, आप साक्षात अक्षर ब्रह्म है, प्रणव ब्रह्म है। इत्यकाक्षर ब्रह्म स्वरूपा ओंकारमय दिव्य अनूपा युगल नयन कार सम सोहा अधरम मृतोकार मनमोहा मौलि देश मकार पुण्य तिलक सुनाद बिंद समरह सहाय। आहा महाप्रभु आप साक्षात अक्षर ब्रह्म है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म के रूप में आप इसे नीलाचल धाम में नीलाद्रि क्षेत्र में आप विराजमान हो करके प्रणव के रूप में विराजमान हो करके भक्त के दुखों को नष्ट कर रहे हैं। आविर्भूवो जगन्नाथ नीलाद्रि कंदरालय अक्षर ब्रह्म रूपाय सच्चिदानंद रूपिणी। आप सच्चिदानंद रूप है, अनंत भक्त भक्त भक्त, क्योंकि ये भक्ति का सागर और इसी सागर में डुबकी लगाने के लिए आप भक्त पहुँचे हुए हैं। कहा गया प्रभु आप इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम नाम से भी विराजित हैं। सर्वेषां सर्वदेवानां राजस्य पुरुषोत्तम सर्वेषां सर्वक्षेत्राणां राजस्य पुरुषोत्तम। आप साक्षात पुरुषोत्तम है, इसीलिए पुरुषों में श्रेष्ठ है प्रभु। आपकी ये सुंदर स्वरूप देख करके कृतार्थ हो रहा होगा, आप सुमुख को दर्शन करवाइए प्रभु। कहा गया प्रभु ये जाति, ये संस्कृति, ये साहित्य, ये कला कारीगरी सभी आपको समर्पित है। इसीलिए उड़ीसा के विश्वास में, प्रश्वास में, कृषि में, कृष्टि में, हर्ष में, विषाद में, दैन्य में, प्राचुर्य में आप ही आप हो, आप ही आप हो। विपत्ति आई तो उड़िया गाता है, भुज तले मते रखो महाबाहु, बाहु तले मते रखो, यानी मुझे आपके बाहु की छाया में आश्रय दीजिए प्रभु। अभिमान में कहता है मैं तुझे कुछ भी मांगता नहीं, अभिमान बढ़ जाने से आप काल सर्प हैं कहकर गालियां देता है। दुनिया के जहां भी रहे यही कहता है कि मैं आपके श्री क्षेत्र में आना चाहता हूं, या आने के बाद फिर लौट कर जाने का मन नहीं करता। वाह रे भक्त वाह, क्यों? क्योंकि उनकी महाबाहु के आश्रय में भक्त आना चाहता है। वो महाबाहु का क्यों? क्योंकि महाबाहु भगवान की ये जो भुजाएं, ये जो महाबाहु है, क्या करते हैं ना, सूरदास लिखते माधव वे भुजो कहाँ दुराए, जिन्हें भुजनि गोवर्धन धार्यो सुरपति गर्भ न साए, जिन्हें भुजनि कालिको नाथ्यो कमल ले आए, जिन्हें भुजनि प्रहलाद उबार्यो हिरण्याक्ष को धाए, जिन्हें भुजनि दामरी बंधाए कमल मुक्ति पठाए, जिन्हें भुजनि गजदंत उपार्यो मथुरा कंस ढाए, जिन्हें भुजनि अघासुर मार्यो गोसत गाय मिलाए, तिही भुज की बलि जाए शूर तिनकी तोरी दिखाए। इसीलिए इसी भुज की इसी महत्ता के कारण प्रभु आपके भुज के शरण में, आपके महाबाहु के शरण में आना चाहते हैं। प्रभु आपके दर्शन, श्रीमुख के दर्शन के लिए केवल आपके सुंदर नयन को देखने के लिए तरस रहे भक्त। यथाशीघ्र आप विराजमान होकर के वेदी पर भक्तों को आनंद दीजिए दर्शन देकर, क्योंकि ये लोचन विशाल देख करके, ये गुंजमाल देख करके
माथे पर मुकुट आज भले ही नहीं है, लेकिन ये देख करके भक्त कृतार्थ हो जाता है। माथे पर मुकुट देखी, चंद्रिका चटक देखी, छवि की छटक देखी, रूप रस पीजिए, लोचन विशाल देखी, गले गुंजमाल देखी, अधर रसाल देखी, चित्त चुप कीजिए। आपका रसर अधर और लाल लाल गोल गोल नेत्र और सुंदर श्रीमुख देख करके भक्त कृतार्थ हो जाएगा। यथाशीघ्र आपका श्री विग्रह का और श्री मुख दर्शन करवाइए। दूसरी तरफ कहा, प्रभु आपके ये सुंदर दर्शन करने मात्र से, मैं न दर्शन मात्र करने से क्या होता है, दोबारा भक्त के मन में क्या उत्पन्न होता है भाव। भक्त लिखता है, नींद कहाँ इनमें सजनी, जगई व्याकुल बंद पड़ी पड़ी आंखें, आवन की ही आस बंधी, मग और निहारे खड़ी खड़ी आंखें, सावन सी बरसाए रही, अंशुवान झड़ी पे झड़ी लड़ी आंखें, मोहिनी डाल गई पल में मनमोहन की वो बड़ी बड़ी आंखें। मनमोहन की वो बड़ी बड़ी आंखें देखने के लिए तरस रहे हैं भक्त। कब मिलेगा प्रभु, आपका दर्शन कब मिलेगा प्रभु। निश्चित रूप से आपका ये सुंदर स्वरूप देखकर हम कृतार्थ होंगे, सुंदर स्वरूप देखकर हम कृतार्थ होंगे, क्योंकि आपका ये सुंदर स्वरूप देखने मात्र से, इसीलिए कि भक्ति मुक्ति आप प्रदान करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दारु ब्रह्म सर्व दुख हरणी अकंठ आनंददायी कही गई है। हे मेरे रसिक शिरोमणि देव, तुम कैसे अभी तो रथ पे विराजमान हुए हो, लेकिन अपना सुंदर मुखमंडल तो दिखाओ। देखो ना कैसे सारे भक्त जिस तरह से तुम्हारे नयन अपलक हैं वो तुम्हें देख रहे हैं। तुम पीठ मोड़े हुए हो, वो व्याकुल है। एक बार घूमो और दिखाओ, दर्शन दो। रथ पे तुम्हारे उस रूप को देखकर सभी इस जीवन मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहते हैं। अभी धीरे धीरे डोलते हुए, ये तो जगन्नाथ स्वामी हैं, ये तो इनकी मर्जी, वो जितनी देर मर्जी चाहे मुख मोड़ के रहेंगे या देर से रहेंगे, या कब वो अपने भक्तों को दर्शन देंगे, ये उनकी मर्जी पे निर्भर करता है। हम तो प्राणी एक निमित्त मात्र हैं, और आज सोच रहे हैं इस अहंकार से कि देखो हम उठा के प्रभु को सिंहासन से, उनके रत्न सिंहासन से यहाँ पर ले आए हैं। मनुष्य भी कितना गर्वी होता है, कितनी जल्दी उसको अहंकार आ जाता है। वो जानता नहीं कि प्रभु की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कहा जाता है जगत की ओर देखने वाला अहंकार से बढ़ता है और प्रभु की ओर देखने वाला प्रेम से परिपूर्ण होता है। तो आज सबको जगत की ओर नहीं देखना है, बल्कि प्रभु की ओर देखना है, और प्रभु की ओर सब भक्तगण देख रहे हैं और वो प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं। अहंकार सदा लेकर प्रसन्न होता है और प्रेम सदा देकर। तो हे प्रभु, तुम उस प्रेम की वर्षा करो, हम पे वो प्रेम बरसाओ, क्योंकि हम भी संपूर्ण होना चाहते हैं। अहंकार जिस पर बरसता है उसे तोड़ देता है, और प्रेम जिस पर बरसता है उसे जोड़ देता है। हम तो इतने झूठे जीव हैं, मनुष्य हैं, कितनी जल्दी अहंकारी हो जाते हैं, सबसे संपर्क तोड़ने लगते हैं। कोई थोड़ा अमीर बन जाता है तो अपने बंधुओं से संपर्क, अपने रिश्तेदारों से संपर्क तोड़ लेता है। हमें वो नहीं बनना, हमें तो केवल मात्र तुमसे जुड़ना है। सारे भक्तगण यहाँ पर अथाह समुद्र, एक तरफ पूरी नगरी में महोदधि समंदर, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी के पिता, और दूसरी तरफ ये हमारे भक्तजनों का सैलाब, और ऊपर से बादल ढके हुए। ऐसे मनोरम दृश्य का क्या मैं वर्णन करूं। अहंकार सबसे आगे बढ़ना चाहता है और प्रेम सबसे पीछे रहना पसंद करता है। हम तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं प्रभु, हमको तुम्हारे आगे नहीं जाना है, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। आज तुम अपना रथ लेके आगे बढ़ो और हम सब भक्तगण तुम्हारे पीछे चलेंगे। हमारे रक्षा बल इतने
मुस्तैदी से अपना कर्तव्य करते हुए, ड्यूटी करते हुए, दिन रात एक करते हुए, अपने परिवार वालों से दूर, कोई भूख प्यास का ध्यान न रखते हुए कि भक्त जनों को कोई तकलीफ ना हो, प्रभु को कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो, और ये रथ यात्रा कैसे सुचारू रूप से चल सके, इसकी व्यवस्था सरकार और कानून सभी ने मिलकर बहुत ही सुंदर ढंग से की है। अब प्रभु तो कह रहे हैं, प्रभु रुके हुए हैं, कह रही हैं, अहम भक्त परोधीनो, मैं कहाँ स्वतंत्र हूँ, मैं तो भक्तों का दास हूँ, उनका पराधीन हूँ, मैं कभी भी स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम लोग जो मुझे ऐसे बांध के लेके आए, रथ पे चढ़ाए, क्या मैं स्वतंत्र हूँ? नहीं हूँ। तुम लोग मुझे जहाँ ले जाते हो प्रेम से मैं चला जाता हूँ। तुम बुलाते हो, मैं रथ पर आ जाता हूँ। तुम आते हो, रथारूढ़ होता हूँ। तुम कहते हो तो आड़प मंडप में जाता हूँ, गुंडीचा मंदिर में जाता हूँ। भक्त चाहते हैं तो मैं रथ यात्रा आनंदमयी करता हूँ। मैं तो तुम्हारा पराधीन हूँ, तुम्हारे ही इशारों पे चलने वाला हूँ, लेकिन तुम अहंकार में भर जाते हो, और वो अहंकार हम सबको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जो ये दारू ब्रह्म है, सर्व दुख हरणी है, अखंड आनंददायी है, वो रसिक शिरोमणि देव है, उस देव के दर्शन तो दुर्लभ ही होंगे। इतनी आसानी से वो कैसे देंगे? देखिए, जिस तरह चातक आकाश की तरफ देखता है कि एक वर्षा की बूंद उसके गले में आके आए, उस तरह से सभी आज केवल मात्र प्रभु की तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही एक हुआ था, एक घटना थी जब द्रौपदी को भरी सभा में निवस्त्र करने की चेष्टा चल रही थी, कर रहा था दुशासन दुर्योधन के कहने पर। तब द्रौपदी ने सभी को हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि हे मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। कृपाचार्य हो, भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, धृतराष्ट्र हो, सभी अपना चुप रहे और उस अन्याय को अपनी आंखों से देखते रहे, सिर झुका के बैठे रहे। किसी ने सर उत्तोलन नहीं किया। वो एक हाथ से अपनी साड़ी को अपनी छाती से लगाए हुए, दूसरे हाथ से अपने सखा, अपने प्रिय मित्र, अपने प्रभु इष्ट देव कृष्ण को याद करती है। हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे सखा मुझे बचाओ। कृष्ण उस समय भोजन कर रहे होते हैं। माँ लक्ष्मी व्यास में बैठी है रुक्मणी, वो कहती है, देखो तुम्हारी सखा तुम्हें बुला रही है, तुम्हारा भक्त तुम्हें बुला रहा है, तुम क्यों नहीं जा रहे? तो कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी भी उसकी बाजुओं में दम है, वो एक हाथ से अपने को पकड़े हुए एक हाथ से मुझे बुला रही है। जिस दिन वो पूर्ण शरणागत होगी मैं तत्काल उपस्थित होऊंगा। और वही हुआ। थक हार कर जब उसे कहीं से सहायता न मिली, द्रौपदी ने दोनों हाथ अपने ऊपर कर दिए और प्रभु की शरणों में पूर्ण शरणागत हो गई कि हे कृष्ण, हे मेरे सखा, मेरी लाज रखो। और तख्त क्षण प्रभु ने हजारों मीटर लंबा वस्त्र देके उसकी लाज को रखा। इतना लंबा वस्त्र उसको प्रदान किया कि दुशासन उसकी साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो गया। उसको होश ही नहीं रहा, इतने दुष्ट और इतने बलवान जो दुशासन था। तो प्रभु कहते हैं, अगर भक्त तुम यहाँ पर आए हो, मेरे पास आए हो, तो इस तरह से आना नहीं होगा कि मन में थोड़ा लालच है, थोड़ा लोभ है, थोड़ी बारिश हो रही है, एक हाथ में छतरी है, दूसरे हाथ से मुझे बुला रहे हो। पूरी तरह से मुझे बुलाओ और देखो मैं कैसे तुम्हें दर्शन देता हूँ। इसीलिए तो वो तटस्थ होकर अभी रथ के ऊपर तो चढ़ गए हैं, लेकिन अब जाकर उन्होंने दर्शन दिया है। देखिए, दोनों हाथ ऊपर करके, यहाँ कोई हाथ जोड़ के विनय की प्रार्थना नहीं करता है। यहाँ पर पुरी में आकर सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके पूर्ण शरणागत होके जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ के उद्बोधन करते हुए अपने को समर्पण करते हैं। और जहाँ भक्त पूरा समर्पण कर देते हैं, वहीं पर वो अपनी करुणा की, प्रेम की वर्षा कर देता है और अपने उन चक्का नयनों से, उन घृमित नयनों से, अपलक नयनों से वो अपार कृपा की वर्षा अपने भक्तों पे करता है। वो प्रेम, करुणा, स्नेह, संवेदना, समता, उदारता और सहनशीलता की सतरंगी आभा लिए हुए हैं। भक्त इसमें ज्योतिमान होकर ही लौटते हैं सभी। जितना मैं तुमको निहारूं कालिया, मन में यही भाव हिचकोले खाते हैं। तुम्हारे विशाल नयनों जैसे मुझे ही निहारते हैं। यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भक्त, वो किसी भी कोने से, पूर्व दिशा से देख रहा हो, पश्चिम से देख रहा हो, 100 गज दूर से देख रहा हो, पास से देख रहा हो,
प्रभु के नयन तो ऐसे हैं, जो भी उसे जहाँ से भी देखता है, वो चबूतरों पे खड़ा देखता हो, बालकनी में खड़ा देखता हो, होटल की खिड़कियों से खड़ा देखता हो, लगेगा जैसे प्रभु केवल मात्र उसे ही निहार रहे हैं, उसे ही देख रहे हैं। तुम जगत के पालनहार, मैं धरा की धूल। ईश्वर को और क्या कहें। तुम जगत के पालनहार, मैं धरा की धूल। तुम विशाल हृदय, क्षमा प्रदानी, मैं कण और कहाँ की भूल। हम तो कितने भूल करते हैं, कितने पाप करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, फिर प्रभु तेरे चरणों में आके कान को पकड़ते हैं, माथा रगड़ते हैं और कहते हैं प्रभु मेरी भूल को क्षमा करना। तुम स्थितिमान परमात्मा, मैं भटकती आत्मा। तुम तो स्थितिमान हो, हम ही भटकते हैं उन आत्माओं में। कितने जन्म लेते हैं कि किस जन्म से हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें छुटकारा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। वो तो तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मिलेगा। संभाल लो अपने आप में यूं मुझको हे प्रभु, मोक्ष का वरदान दो मुझको, जैसे दीप लौ में जलती है। प्रभु और क्या प्रार्थना करूं, जब तुम्हारे सामने आते हैं तो कुछ रह ही नहीं जाता मांगने के लिए। ये वैभव, ये दुनिया की चीज़ें, इसका कोई मूल ही नहीं है। अब प्रेम के सूखे जल में जब डूबना तय था, तुमने मुझको थाम लिया जब बचना संभव नहीं था। तुम तो उस समय थामते हो जब पूरी दुनिया के लोग जोर लगा के प्रभु तुमको बुला है। तुम्हारे सामने पीड़ा में बिंधे सारे गीत सुना देती। मन पर बड़ा बोझ जगत का तुम्हारे कंधों पर डाल देती हूँ। आज अपने कंधों पे उठा के ये सेवायत, ये पिठुआ काखुआ सब सेवा कितनी मशक्कत करते हुए आपको रथारूढ़ किए। और एक मैं हूँ, एक भक्तन हूँ। भक्तन आके कहती हैं दूर से कि मैं अपने मन की सारी पीड़ा तुम्हारे कंधों पे उड़ा देती हूँ। तो सोचिए उन अनगिनत करोड़ों जीव जंतुओं की, कीट पतंगों की, मनुष्यों की, किन्नरों की, गंधर्वों की, नागों की, सबकी, देवों की, सबकी पीड़ा को तुम अपने कंधों पे ही तो उठाए हुए हो। तुम्हारे ये नयन, अपलक नयन, जितने देखो उतने कम है। और कोई रूप नहीं चाहिए, कोई श्रृंगार नहीं चाहिए, बस इस तरह का ही हम तुम्हें देखते रहें। केश के बंद खुल जाएं, जोगन सी हो जाती हूँ, जय घोष करती हुई बेसुध सी हो जाती हूँ। जब यहाँ पर भक्तनें आती हैं, कभी कभी हम देखते हैं ये महिलाएं जो नाचती गाती हुई आती हैं, कोई कहता है इन्हें लाज शर्म नहीं है। लाज शर्म प्रभु के आगे क्या। भक्त जब अपने गाना गाती हैं, नाचती हुई अपना संगीत पेश करती हैं, वो कहती हैं केश के बंधन खुल जाए, जोगन सी हो जाती हूँ, जय घोष करती हुई बेसुध सी हो जाती हूँ। उनको क्या सुध, वो तो प्रभु के चरणों में है। ये सब शुद्ध होना, बेसुध, ये सब रहना, जग के रहना, विचारों में चलना, समाज की बेड़ियों में बंधे रहना, वो तो तब तक होता है जब हम सांसारिक नियमों में बंधे होते हैं। जब प्रभु के चरणों में आते हैं तो और कोई नियम, कोई भी बेड़ियां हमें बांध कर नहीं रख सकती। हे प्रभु जगन्नाथ, थामो मेरा हाथ, लुभाए अपना कोई पदार्थ, बस मेरा यही है एक स्वार्थ। धर्म युद्ध हो या हो कर्म युद्ध हो, आप बनो सारथी, मैं बनूं तुम पार्थ। क्योंकि तुम्हारा जैसा सारथी अगर जीवन में मिल जाए तो और क्या चाहिए। यहाँ पर देखिए इस तरह इस बार में कर्टन को काफ़ी दूर तक रखा गया है ताकि भक्तगण पूरे रथ के पास ना आ सकें। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब भीड़ होती है तो भक्तगण श्रद्धा में, प्रेम में, भक्ति में बेकाबू हो जाते हैं। तो उस समय उनको काबू करने के लिए बहुत
कोशिश करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ पे सेना बल के अधिकारी जो हैं वो चाह रहे हैं भक्तों को कष्ट भी ना हो और रथ यात्रा भी सुचारू रूप से चले। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार या लाठीचार्ज या धक्का मुक्की ना हो, इसीलिए वो प्रेम से एक तरह की वो दीवार खड़ी करके यहाँ पर उनके भक्तों के सामने खड़े हैं। सभी भक्त चाहते हैं कि हम प्रभु को जाकर रथ पर एक बार छू लें, लेकिन कभी कभी जब लाखों की संख्या में भक्त होते हैं तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए भक्त कहता है, मैं हूँ अनजान, बन जाओ मेरे नाथ, अपने रथ में ले चलो मुझको अपने साथ। सभी कह रहे हैं मुझे अपने रथ पे ले चलो, हम सभी को उनके साथ जाना है। लेकिन प्रभु तो हंस रहे हैं। प्रभु ये नहीं कहते कि ये दुनिया ही पूरा रथ है, मैं ही उसका चालक हूँ, मैं ही त्रिकालदर्शी हूँ। और हम ये भी कभी कभी भूल जाते हैं, हम उसी के इशारों पर तो चलते हैं। हे जगन्नाथ, तुम हो त्रिभुवन के स्वामी। त्रिभुवन के स्वामी आज इस रथ पे हैं। हे जगन्नाथ, तुम हो त्रिभुवन के स्वामी, भक्तों के आराध्य, तुम्हारे रथ की शोभा निराली, गुंडीचा मंदिर तक जाती, 9 दिन का प्रवास यात्रा तुम्हारी, भक्तों के दुख हरने वाली। हम जो जितने दुखी हैं, जितने भी कष्ट पाए हुए हैं, हम सबके दुख दूर करने वाली ये यात्रा में तुम बाहर आए हो। यहाँ पे देखो हर्षोल्लास से जैसे ही प्रभु रथारूढ़ हुए और अपलक दृष्टि उन पे डाल दी, कैसे नौजवान मतवाले होके खुशी से नाचने लगे, जैसे मन के सारे कष्ट दूर हो गए हों। इसमें कई बेरोजगार भी होंगे, कई गरीब भी होंगे, कई ऐसे भी होंगे कि उनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन उनको उसकी कोई चिंता नहीं है। ना क्षुधा की चिंता है, ना भूख की चिंता है, ना भविष्य की चिंता है। उन्हें तो बस प्रभु ने देख लिया, उसी में वो आनंदित हो गए हैं। बलभद्र सुभद्रा संग तुम करते हो सबका कल्याण, प्रभु तुमको कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हारे चरणों में मेरा जीवन, उद्धार करो मेरे पतित पावन। सभी तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारे चरणों में हमारा जीवन है और हम सबको तुम उद्धार करो। यहाँ अपना उद्धार करवाने ही तो आए हैं, नहीं तो भला इस वर्षा में कौन आता। ये कोई ऐसी नहीं है जहाँ पे कि लोगों को बुलाया गया है, निमंत्रण भी नहीं दिया किसी ने, कोई ट्रक में भर भर के लोग भी नहीं लाया, किसी का भाषण सुनने भी नहीं आए। यहाँ पे भक्त अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से ही वो अपने दर्शन देने के लिए आए हैं। चंदन से जो लिपे हुए हमारे महाप्रभु हैं, चंदन और कपूर से सारे वातावरण को महकाते हुए, चंदन की महक, वर्षा की फुहार, मन में उम्मीदें और अपनों का प्यार। ये जो वर्षा की फुहार है, ये हमारे अपनों का ही तो प्यार है, जो हम परस्पर एक दूसरे भक्तों पे उड़ेल रहे हैं और अपने इष्ट देवता जगन्नाथ स्वामी पे कर रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी के इतिहास एवं जगन्नाथ संस्कृति के बिना उड़िया साम्राज्य और उड़ीसा का इतिहास अधूरा है। यहाँ का केंद्र बिंदु है जगन्नाथ संस्कृति, यहाँ की रग रग में बसी हुई है जगन्नाथ संस्कृति। चाहे वो बच्चे पैदा हो और उसका नामकरण हो, या वो जो सूतक हटने के बाद पूजा हो, या घर में किसी की मृत्यु हो जाए और उसका शुद्धिकरण हो, किसी की सगाई हो, कोई दोनों सहेलियाँ आपस में मिल रही हो, कोई दोस्त कोई बंधन रखे, कोई एग्रीमेंट की पेपर की जरूरत भी नहीं है। यहाँ की तक की लेन देन वो जगन्नाथ स्वामी के सामने आके प्रतिबद्ध होके एक अगर शपथ ले लेते हैं तो वो शपथ का मूल्य कोर्ट के कागज की तो बात ही क्या है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हर चीज़ में जगन्नाथ स्वामी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। उनके रोज की पूजा में हुआ हो, रोज की खुशियों में हो, दुख के समय में हो, बिना इसके जगन्नाथ स्वामी के वो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और शायद जगन्नाथ स्वामी का अपार प्रेम, अपार करुणा की दृष्टि ही इस जाति को गर्व के साथ जीने का मौका देती है। आज जो स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है पूरे देश में, ये स्वच्छता का जो मैसेज है, ये जो स्वच्छता सारी जगह होनी चाहिए, ये जगन्नाथ संस्कृति का ही तो हिस्सा है। माँ लक्ष्मी ने सर्वप्रथम कहा था, मैं उसी भक्त के घर जाऊंगी, वो चाहे किसी भी जाति वर्ण का हो, जो अपने घर को स्वच्छ रखेगा, साफ रखेगा और बहुत ही भक्ति के साथ मुझे बुलाएगा। इसीलिए तो माँ लक्ष्मी बिना किसी अनुमति के
चंडाल के घर भी चली गई थी। और उसके लिए तो लक्ष्मी पुराण की कहानी भी है। ये छोटे छोटे रथ लेते हुए सब अपनी भक्ति के अनुसार, कोई वैदिक परंपरा के अनुसार बड़े रथ का निर्माण नहीं कर सकता, इसीलिए कई संप्रदाय के लोग या कई युवक या कई बच्चे वो अपना रथ बनाते हैं, छोटा रथ बनाते हैं। माँ उसमें जगन्नाथ प्रभु की स्थापना करती है और वो उसका नगर भ्रमण करते हैं। तो लक्ष्मी पुराण जब पढ़ी जाती है, जब हम पूरे भारत में महिलाओं के अधिकार के बारे में बाहर आलोचना चक्र में जाते हैं, बात करते हैं, तो मैं बहुत दावे के साथ कहती हूँ कि उड़ीसा की संस्कृति, उड़िया संस्कृति, जगन्नाथ संस्कृति ही पहली संस्कृति है। बलराम दास की लक्ष्मी पुराण, जिसने नारीवाद को, नारी शक्ति को सशक्त किया और नारी की इस परिवार में, इस समाज में क्या भूमिका है, वो उन्होंने बताई कि लक्ष्मी कितनी स्वतंत्र थी, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकती थी। और जब लक्ष्मी का अपमान किए, जब वो घर छोड़ के गई, तो जगन्नाथ स्वामी और उनके बड़े भाई बलभद्र को भी खाने के लाले पड़ गए थे और क्षमा मांगकर वो लक्ष्मी को फिर वापस घर लाए थे। तो हर नारी को ये वार्ता जाती है समाज में कि वो कोई भी हो, वो कभी भी कमज़ोर नहीं है और वो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। और ये केवल मात्र जगन्नाथ संस्कृति में ही संभव हो सकता है। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुम्हें। जगन्नाथ जयता जगन्नाथ। जयता जगन्नाथ जयता जगन्नाथ जयता जगन्नाथ। इदानीं वयं पश्यामः सर्वे देवाः रथारूढाः सन्ति। महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः अखिलाण्डब्रह्माण्डनायकः दिव्यदर्शनं प्रयच्छति। कविः डॉक्टर प्रदीप्तानन्दः प्रार्थयति प्रभु पारावारपति पुरीपुरपति सौभाग्यलक्ष्मीपति श्रीक्षेत्राधिपतिर्महेश्वरपतिर्मायापतिर्भूपति श्रीवैकुण्ठपतिर्जगज्जनपतिर्माधुर्यलीलापति दारुब्रह्मपतिर्महामकपति कुर्यात् सदा मङ्गलम्। महाप्रभुः श्रीजगन्नाथ सर्वदा सर्वेषां मङ्गलं विदधातु। प्रभोः सेवानिमित्तं तुलसीदलानि पुष्पमालाः आगताः सन्ति। तत्र कथं प्रभोः श्रीअङ्गस्य शोभासम्पादनं भविष्यति। महाप्रभुः पुष्पप्रियः, महाप्रभुः तुलसीप्रियः, अतः अद्य भगवतः कृते तुलसी समर्पणं भविष्यति एवं च माला समर्पणं भविष्यति इति वयं रथयात्रायां दिव्य रूपं सन्दर्शयामः, अवलोकयामः। वृष्टिः प्रचलति, यात्रापि प्रचलति। वयं पश्यामः तत्र क्रमशः यथा समयः अग्रे सरति रथाः अपि प्रस्तुताः सन्ति, पथोपि प्रस्तुतः अस्ति। रथाः श्रीगुण्डिचामण्डपं प्रति गमिष्यन्ति। वयं तत्र पुराणशास्त्रानुसारं श्रीक्षेत्रस्य महत्त्वविषये आलोचनां कुर्मः। नारदपुराणे मुख्यदायकस्य श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रस्य यद्वर्णनं प्राप्यते, यथा जगन्नाथं ये अर्चयन्ति सुभद्रां बलभद्रकं ज्ञानं प्राप्य श्रियं पुत्रान् प्रदन्ति पुरुषोत्तमम् इति एतत्तु गरुडपुराणे पुरुषोत्तमविषये प्राप्यते। पुनः पुरुषोत्तमशब्दः तीर्थत्वेन श्रीजगन्नाथत्वेन च व्यवहृतः अस्ति। पुरुषोत्तमराजस्य सूर्यस्य च गणस्य च सर्वान् कामान् अवाप्नोति सम्पूज्य पुरुषोत्तमं नारायणं तु सम्पूज्य नराणाम् अधिपो भवेत्। मत्स्यपुराणे श्रीजगन्नाथस्य नामोच्चारणपूर्वकं पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य महत्त्वं सूचितमस्ति। सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्म विष्णु महेश्वरः वासुदेव जगन्नाथस्तथा संकर्षणो विभुः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयायते। इदानीं प्रभोः समीपे तत्र मालाः नीयन्ते, तुलसीदलानि च नीयन्ते। प्रभोः सेवार्थं पुष्पमालानां, पद्मपुष्पमालानां, तुलसीदलानां च तत्र समर्पणं भविष्यति। पुरुषोत्तमं श्रीजगन्नाथं सम्पूज्य सर्वाभीष्टसिद्धः भवितुं शक्यते इति अग्निपुराणं सूचयति। सुभद्रां बलभद्रं च प्रपूज्य पुरुषोत्तमं सर्वकामसमायुक्त कुलमुद्धृत्य नाकभाक्। नाक नाम स्वर्गः। स्वर्गगामी भवितुम् अर्हति भक्तः यदि भगवन्तं पूजयति। वृष्टिः पतति, इन्द्रः साक्षात् भगवतः श्रीजगन्नाथस्य सेवां विदधाति इव प्रतीयते।
महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः नन्दिघोषरथस्य उपरि विराजते। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते जगदाधार नमस्ते पुरुषोत्तम नारायण जगन्मूर्ते जगन्नाथ गदाधर पितवास श्री अकांत जनार्दन नमोस्तुते। वामन पुराणे महाप्रभुः कृते स्तुतिः विधीयते। महाप्रभुः चराचर जगतः अधिनायकः भवति। आहा भक्तराजः अत्र दृश्यते। सोऽपि अत्र तु महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः रामभक्तानां कृते श्रीरामः। पश्यन्तु भवन्तः अत्र महान् कपिः महान् भक्तः सोऽपि अत्र अवलोकयति प्रभोः श्रीजगन्नाथस्य मुखं चक्रनयनं दृष्ट्वा सर्वे यथा आनन्दिताः सन्ति महाप्रभुः तत्र दिव्यदृष्टिं प्रददाति। धर्मपुराणे तीर्थयात्रा प्रसंगे श्रीजगन्नाथस्य पुरुषोत्तमरूपेण प्रसिद्धिः समुपलभ्यते। रथत्रयम् अवलोकयन्तु भवन्तः। रथत्रयं सुसज्जितं वर्तते। तीर्थं नारायणस्यान्यं नाम्ना न तु पुरुषोत्तमं तत्र नारायणः श्रीमान् अस्ते परमपुरुषः। विष्णुपुराणे दक्ष वंश वर्णना प्रसंगे श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रं विष्णोः क्षेत्रमिति सूचितं। स चापि भगवान् कण्डु क्षीणे तपसि सप्तमः पुरुषोत्तममाख्यातं विष्णुरायतनं ययौ तत्रीकाग्रमतिर्भूत्वा चकाराराधनं हरेः। बडदाण्डस्य अवृद्धं दृश्यम् आरक्षिजनः तत्परा सन्ति। एवं च ये आकस्मिकतया यदि कस्यचित् स्वास्थ्यहानिः भवति तथापि तत्र स्वास्थ्यविभागपक्षतः कर्मचारिणः सेवातत्पराः दृश्यन्ते। वामदेवसंहिता अस्ति। वामदेवसंहिता ग्रन्थे शिवपार्वत्योः भगवतः शिवस्य च एवं च भगवत्याः पार्वत्याः उभयोः सम्भाषणेन अस्य क्षेत्रस्य महत्त्वं सूचितं वर्तते। एकदा पार्वती देवी देवेशं वृषभध्वजं पप्रच्छ तीर्थगणने पुरुषोत्तममीरितं सर्वक्षेत्रवरं श्रेष्ठं कथितं केन कारणं किमर्थं पुरुषोत्तमक्षेत्रं क्षेत्रवरमित्युच्यते। तत्र मुख्यं क्षेत्रं श्रेष्ठं क्षेत्रं सर्वक्षेत्रवरं श्रेष्ठं किमर्थं बहूनि सन्ति क्षेत्राणि चेदं क्षेत्रवरं कथम् एतत् ज्ञातुं मया पृष्टः कथय त्रिपुरान्तक। तदानीं पार्वत्याः वचनं श्रुत्वा वृषभध्वजः भगवान् शङ्करः श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रस्य महत्त्वं प्रकटितवान्। अत्र कारणं भवति श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रे श्रीजगन्नाथदेवस्य आविर्भावं महत्त्वं भवति। अतः भगवान् नारायणः ब्रह्मणः जन्मकालादेव नीलमाधवरूपेण पुरुषोत्तमक्षेत्रे स्थितः आसीत् इति इमां कथां तत्र कथयति इति तत्र शिवपार्वत्योः संवादमाध्यमेन सम्भाषणमाध्यमेन भारतीयज्ञानपरम्परायाम् एतस्य पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य महत्त्वं तत्र सुनिबद्धं वर्तते। नारायणात् समुद्भूतः ब्रह्मा पञ्चमुखो अभवत् ब्रह्मणस्य यदा जन्म तदा प्रभृतिमाधव नीलमाधवरूपेण स्थितः स्यात् पुरुषोत्तमे स तु तेनैव रूपेण पूर्वार्धे ब्रह्मणः स्थितः परार्धे स जगन्नाथ स्थितो भवति पार्वती। पश्यन्तु महाप्रभु श्रीजगन्नाथस्य अपूर्वां कथाम् आकर्णयन्तु भवन्तः। श्रीजगन्नाथेन इन्द्रद्युम्नं प्रति एवं कथितमस्ति कस्यामपि अवस्थायाम् अहं पुरुषोत्तमक्षेत्रस्थं श्रीमन्दिरं न त्यजामि। एवं तत्र उच्यते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव पुनः पुनः प्रसादप्रतिमाभङ्गे न त्यजामि कदाचन। वामदेवसंहितायां स्वयं तत्र महाप्रभुः इन्द्रद्युम्नं प्रति वदति सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव पुनः पुनः प्रसादप्रतिमाभङ्गे न त्यजामि कदाचन। इदानीं तत्र भवन्तः पश्यन्तु यात्रायाः क्रमः अग्रे अग्रे चलति कथं सेवकाः चलन्ति रथस्य उपरि चलन्ति। इतोपि उत्सवमूर्तीनाम् आगमनं भविष्यति। वयं प्रतीक्षां कुर्मः मदनमोहनस्य आगमनं भविष्यति। एवं च तत्र रामकृष्ण तत्र अपि आगमिष्यति। बलभद्रस्य रथे तत्र तालध्वज रथे उपवेशनं भविष्यति। एवं च अग्रे अग्रे रथयात्रायाः क्रमः प्रचलिष्यति इति वयं प्रतीक्षां कुर्मः। वामदेवसंहितावत् कपिलसंहितायामपि तृतीय चतुर्थ पञ्चमाध्यायः नीलाचलक्षेत्रस्य श्रीजगन्नाथसंस्कृतेः महत्त्वं प्रकाशयन्ति। तत्र पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य महात्म्यवर्णनात्मकं क्षेत्रेऽस्मिन् भगवतः श्रीजगन्नाथस्य दारवलीलायाः परिस्फुटनं
संहितायामस्यामपि समुपलभ्यते। पश्यन्तु कथं विमानद्वारा ते सेवकाः महाजनसेवकाः भगवन्तम् आनीय आगच्छन्ति। रामकृष्ण मदनमोहन एते तत्र रथे अवश्यं स्थास्यन्ति। तत्र बलभद्रस्य रथे तत्र रामकृष्णौ भवतः तत्र एवं च तत्र जगन्नाथस्य रथेपि मदनमोहनस्य तत्र अवस्थापनं भविष्यति। रथ आकर्षणस्य रथचलनात् प्राक् या विधिव्यवस्था वर्तते तां विधिव्यवस्थां पुरस्कृत्य ये सेवकाः इदानीं भगवतः उत्सवमूर्तिं नयन्ति। भवन्तः एतदपि जानन्तु, श्रीजगन्नाथसंस्कृतौ श्रीजगन्नाथमन्दिरे विविधासु यात्रासु उत्सवमूर्तीनाम् आगमनं भवति। एवं च भगवतः सेवार्थं पश्यन्ति ये सेवकाः तत्र पुष्पाणि पुष्पमालाः तुलसीदलानि च आनीय आगच्छन्ति। वयं पश्यामः रथेषु पार्श्वदेवताः दृश्यन्ते। अत्र एतदपि अस्माकं पुराणशास्त्रेषु विशेषतः श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये तत्र वर्णितं वर्तते। देवापि उत्सवे अस्मिन् पुरुहूतपुरोगमः अभिमानं परित्यज्य श्रेणीभूता हि पार्श्वयोः। सर्वे देवाः इन्द्रसहिताः सर्वेपि देवाः अत्रैव रथयात्राम् अवलोकयितुम् आगच्छन्ति इति प्रतीकरूपेण रथेषु पार्श्वदेवताः भवन्ति। किं कुर्वन्ति ते? प्रकुर्वते महायात्रां तैस्तैर्दिव्यैः परिच्छेदैः तेषामग्रेसरस्तत्र देवोऽपि प्रपितामहः ब्रह्मापि तत्र आगच्छति। सोऽपि तत्र जगन्नाथं रथे यान्तं महोत्सवे पदे पदे प्रणमति भगवन्तं सनातनं दिव्यम् अपूर्वं दृश्यं वयं पश्यामः। भगवतः आगमनं भवति। रथे उत्सवमूर्तीनां तत्र उपवेशनं भविष्यति। आलटसेवा प्रचलति, छत्रं चाम्रसेवा एतत् सर्वं भक्ताः कथं शृङ्खलिताः सन्ति। प्रशासनपक्षतः सर्वाः व्यवस्थाः विहिताः वर्तन्ते। जनाः सर्वे नियन्त्रिताः भवन्ति। वयं पश्यामः अपूर्वं दृश्यं भगवतः श्रीजगन्नाथस्य अलौकिकलीलायाः लोकलीलायाः अपि अत्र चन्दनयात्रायाः घोषयात्रायाः एतद् अपूर्वं दृश्यं वयं पश्यामः। अत्र भवन्तः यदि विचारयन्ति न केवलम् अत्र पार्श्वदेवताः एकस्मिन् रथे अपि तु रथत्रये पार्श्वदेवताः भवन्ति। यदि क्रमशः विचारं कुर्मः बलभद्रस्य तालध्वजरथे पार्श्वदेवताः भवन्ति। यतो हि भगवान् बलभद्रः साक्षात् शिवः भवति। रामावतारे सह लक्ष्मणरूपेण सह प्रादुर्बभूव। अतः तत्र क्रमशः तत्र प्रलम्बारिः एवं च नृत्यगणपतिः अनन्त वासुदेवः एवं तत्र स्कन्दः नाट्याम्बरः अनन्तरं गजान्तकः त्रिपुरारिः हरिहरः एवं द्वाविंशभुज नृसिंहः इति नवपार्श्वदेवताः तत्र भवन्ति इति वयं जानीमः। इदानीं वयं पश्यामः महाजनसेवकाः तत्र नयन्ति। तत्र मदनमोहनं श्रीरामकृष्णम् अवतारयन्ति नीत्वा रथे उपवेशनं कारयिष्यन्ति इति प्रस्तुतिः प्रचलति। अत्यन्तं दिव्यशोभाद्वारा अत्र विमानं शोभते। विमानेन एव आनयन्ति देवान् उत्सवमूर्तिविशेषान् आनयन्ति। पश्यन्तु कथं तत्र समर्पणभावः, कथमस्ति सेवाभावः। इयं भवति श्रीजगन्नाथसंस्कृतिः, इयं भवति उत्कलीया संस्कृतिः, इयं भवति महनीया संस्कृतिः, भारतीया संस्कृतिः। अस्माकं संस्कृतौ तत्र सेवाभावना। वयं सेवां कुर्मः, भगवतः कृते आत्मनः सेवां समर्पयामः। सेवा अस्माकं शारीरिकी सेवा, सेवा अस्माकं मानसिकी सेवा एवं च श्रद्धा। यत्किमपि उपनिषद् वदति यत्किमपि देयं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयं। श्रद्धा प्रदर्श्यते रथयात्रायाम्। अस्माकं श्रद्धाभावः, अस्माकं सेवाभावः, अस्माकं समर्पणभावः तत् सर्वम् अत्रैव अवलोक्यते। क्रमशः वयं पश्यामः विमानं स्वीकृत्य महाजनसेवकः अग्रे अग्रे सरन्ति। पूर्णकुम्भः अग्रे अस्ति। एवं तत्र मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। विदध्वनि पश्यन्तु दिव्यं रूपम् अपूर्वं रूपं तत्र पुष्पशोभाद्वरापि शोभते मूर्तिः। एवं च अद्य घण्टानादेन सह छत्रेण सह आलटेन सह यदा देवानां तत्र रथस्य उपरि तत्र नीयते देवानां तत्र आनयनं भवति। एतद् दृश्यं विलोक्य वयम् अत्यन्तं कृतकृत्याः भवामः। भवन्तः जानन्ति अस्यां संस्कृतौ श्रीजगन्नाथसंस्कृतौ सर्वेषां धर्माणां समन्वयः अस्ति, सर्वेषां सम्प्रदायानां समन्वयः अस्ति। एवं च तत्र दशावतारयात्रा इति उच्यते चेत् अत्रापि दशावताराणां कथा वर्णिता वर्तते। अतः पुराणानां शास्त्राणां सर्वेषां ग्रन्थानामपि यदि तत्त्वालोचनं क्रियते अत्र प्रभोः इयं या अपूर्वा लीला दिव्यलीला अत्र सर्वेषां देवानाम् उपस्थितिः
देवाः दानवाः मानवाः सर्वे मिलित्वा रथयात्रायां तत्र आनन्दम् अनुभवन्ति। अतः रथयात्रा परम्परायां भवन्तः द्रक्ष्यन्ति यदा प्रत्यावर्तनयात्रा भविष्यति ततः परम् अत्र भगवतः कृते रथस्य उपरि प्रपानक भोगः भविष्यति, प्रसादः भविष्यति, प्रपानकसमर्पणं भविष्यति एवं तत्र मृतपात्राणां भङ्गोऽपि भविष्यति। तेनैव किं भविष्यति, रथे ये तावत् देवाः पार्श्वदेवताः वा यक्ष रक्ष गन्धर्व किन्नराः ये केऽपि आगताः सन्ति रथे भगवतः सेवानिमित्तं तेऽपि तत् प्रपानकं पीत्वा अत्यन्तं कृतकृत्याः भविष्यन्ति, अत्यन्तं प्रीता भविष्यन्ति इति महनीया संस्कृतिः श्रीजगन्नाथसंस्कृतिः अस्ति इति। अत्र भगवतः अपूर्वां लीलां दृष्ट्वा कविः तत्र लिखति अत्यन्तं सुन्दरतया सुललिततया वाणीरत्नपण्डितगदाधरः कथयति। क्षितिक्षितिधर वर कन्दर मण्डन चराचराधीश भक्त जन विबन्दन प्रभो करुणा निधान तब पद तले विलसतु मम मन तब पद तले विलसतु हे प्रभो। घण्टानादेन सह उत्सवमूर्तीनाम् आगमनं भवति। उत्सवमूर्तयः रथेषु विराजमानः भविष्यन्ति। कुत्र विराजते सुसज्जितो नन्दिघोषरथ जनाकीर्णो भवति विस्तृत राजपथ तब जय जय ध्वनि प्रसारेण प्रकम्पते निखिला मेदिनी। अद्य पुरी बड़दाण्डः निखिला मेदिनी समग्र पृथिवी अद्य प्रकम्पते। क्रियते सेवक जनै पद्धति मंडन आसरति मंदं मंदं विश्वविमोहन भक्त मानस रंजन रथमारोहति रमा हृदय चंदन। भवन्तः पश्यन्तु मदन मोहन रामकृष्णदेवस्य एवं उत्सवमूर्तिविशेषस्य कथं भक्ताः महाजनसेवकाः अत्यन्तम् आनन्देन अत्यन्तम् उत्साहेन रथानाम् उपरि स्वीकृत्य गच्छन्ति। वृष्टिः अपि प्रचलति। अग्रे धाराविवरणीं हिन्दीभाषया प्रसारयितुम् अहं सविनयं विनिवेदयामि। प्रभु हाँ सब पतितन को टीकों और पतित सब 4 दिवस के हों तो जन्मत ही को बधिक अजामिल गणिका तारी और पूतना ही को मोहि छाड़ी तुम और उधारे मिटे सूल क्यों जी को न समर्थ अब करिबाय को खेच कहत हो ली को मरियत लाज सूर पतितन में मोह तय कौनी को। जब भक्त अपने आप को पतित एवं अपने आराध्य को पतित पावन मान आराधना करता है तब महाप्रभु निश्चित रूपेण उस भक्त की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और ऐसा भक्त समस्त मनोकामना करता क्या होगा? क्या ये सांसारिक इच्छाएं सांसारिक कामनाएं उसके साथ होती होंगी? बिल्कुल भी नहीं। जब तक कोई व्यक्ति सांसारिक मोह माया बंधनों से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नहीं हो जाता तब तक प्रभु उसे अपना भक्त कहाँ मानते हैं। कहते हैं ना, जब हरि है तब मैं नाही और जब मैं हूँ तब हरि नहीं। अर्थात जब तक मनुष्य के भीतर मैं है अर्थात मेरे होने का दम्भ है, मेरा पद, मेरे गुण, मेरी संपत्ति, मेरा ऐश्वर्य, मेरी विद्या, मेरी महानता और मैं सबसे इतना बड़ा, मेरे पास इतनी प्रजा, मेरे पास इतना धन, मेरे पास इतनी धरती, मेरे पास इतना चाकचक्य, जब तक मनुष्य के भीतर ये मैं है या यूं कहें जितने मैं हैं, ईश्वर उस मनुष्य से उतने ही दूर होते जाते हैं। और जैसे ही मनुष्य के भीतर के मैं कम होने लगते हैं, एक एक कर कटते जाते हैं,
ईश्वर मनुष्य के धीरे धीरे करीब होने लगते हैं, या यूं कहें कि वो मनुष्य ईश्वर के धीरे धीरे करीब होने लगता है। मनुष्य के भीतर का मैंपना जब संपूर्ण रूपेण मिट जाता है, अर्थात उसका अहंकार मिट जाता है, तब वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वो अहंकार जिस किसी तरह का क्यों न हो, लेकिन उसका मिटना आवश्यक है। इसीलिए तो कहा गया है कि जब मैं था तब हरि नाही, जब तक मैं है तब तक हरि आ ही नहीं सकते, और जब हरि है मैं नहीं। और एक बार मनुष्य के रथ रूपी इस शरीर में, इस जीवन में महाप्रभु आ जाते हैं, तब मैं के लिए कहाँ स्थान रहता है, तब कोई भी मैं बच ही नहीं पाता है। ऐसे कई सारे भक्तों की कथाएं हैं जो महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। दासिया बावरी एक बहुत ही सामान्य सा जुलाहा था जो बालूगांव के पास चिल्का में रहा करता था। दासिया बावरी जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था। ये देखिए, महाप्रभु की चिता अर्थात जो मस्तक पर वो धारण करते हैं, रत्नों से जटित चिता, ये चिता जा रही है। महाप्रभु इससे अलंकृत होंगे। इस चिता के बारे में अगर कहें तो इसका मूल्य कितना है, ये आज तक किसी ने भी इसका अनुमान नहीं लगाया है। सारे जौहरी मिलकर भी इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि इसका मूल्य क्या है। विशेष करके उस चिता के मध्य में जो ब्रह्म ज्योति हीरा है, उसका मूल्य करना तो बहुत ही कठिन है, हम या यूं कहें कि असंभव है। महाप्रभु के चिता एवं उनके जितने आभूषण हैं, उन सभी का मूल्यांकन करने हेतु एक बार एक समिति जौहरियों की आती है दक्षिण भारत से। ये वो समय था जब दक्षिण भारत के सभी मंदिरों, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर, अनंत पद्मनाभ मंदिर, इन सभी मंदिरों में भगवान के जो भी अलंकार हैं, उन सभी का मूल्यांकन कर रहे थे। जब ये उड़ीसा आए, पूरी जगन्नाथ जी के मंदिर आए, तो बाकी सारे अलंकार तो सही हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने ब्रह्म हीरक से, जो केंद्र में ब्रह्म ज्योति हीरा है, उससे खचित इस चिता को उनके सामने रखा गया, तो वो चिता को उलट पलट कर देखते हैं और